we designate as an Lightning Bit. So nobody knew us. Nobody knew physically each other at that time. We were all connected on this virtual world. So Rudy came there, and we conferred him with the father of the movement. So that tag is still there, okay? And it's still active. My Nation is baby. Okay? You all know about My Nation? Yeah. So My Nation is his baby. Yeah. Then I will run through quickly, but just I want to go background. Let it go and talk something else. Yeah. So, देखा फिर एक Yahoo group बना. Yahoo group का नाम था Misuse Dowry Act. And Misuse Dowry Act में बहुत ज़्यादा movement नहीं हो रही थी. Somebody came with the idea कि इसका नाम Save Indian Family होना चाहिए. Then that Yahoo group was Save Indian Family. 2005 में बना. And ये नाम Save Indian Family it clicked with the general media. Maybe we should mention that this was all before the Google had come. So that time the search engines and all was not that much popular. Yahoo was there. Yahoo group was there. So Yahoo group काफी popular था. उसमें चल रहा था. And the WhatsApp was also not there at that time. WhatsApp was also not there. So dial-up modem was there. But blogs had just come in. हाई स्पीड इंटरनेट नहीं था. कुछ भी नहीं था. हाई स्पीड इंटरनेट नहीं था. कुछ नहीं था. पर ठीक है जब चीजें सब फास्ट लगती है ऐसी बात नहीं है. Anyway, तो ये सब quickly अब run through कर लो. Just quickly. तो gradually 2005 में we started. हमारा का ये group बन गया था, chapters बन गए थे, and we started weekly meetings. दिल्ली में start हुआ, मुंबई में start हुआ, कोलकाता में start हुआ, बैंगलोर में start हुआ. Bangalore and Delhi were very strong chapters, and Mumbai were very strong chapters. उसके बाद फिर when Suresh ji came in, Chennai was very strong chapter. आगे बढ़ो, बढ़ते चले जाओ. We had Prashant, the jeans actor. Please run the slides. He was there in the Next. Prashant, actor Prashant, the jeans actor. Yeah. So these were some of the activities. Next slide. Yeah. So see, this is 2005. So when somebody is working, कोई एक नया एक आर्टिकल आता है तो लगता है हमने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया. तो वही था जैसे टेलीग्राफ का ये आर्टिकल was a milestone for us. Next. उसी टाइम 2005 में लीगल टेररिज्म का जजमेंट आया था. वो जस्टिस अरिजीत परसाद he gave that judgment. Legal terrorism judgment. Supreme Court gave the. Next. अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग है. This is 2006. यूएन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें कहा था कि 70% ऑफ इंडियन मेन आर अब्यूजिव. दे कमिट डोमेस्टिक वायलेंस. बट दैट डेटा वाज रॉन्ग क्योंकि यूएन की जो रिपोर्ट थी it was something else. It was talking about something 70%. Okay. But our team in USA ने वॉशिंगटन पोस्ट को लिखा. वॉशिंगटन पोस्ट ने ये न्यूज छापी थी कि भाई आपका ये सब गलत है, सब कुछ है. Then they publish an apology here. Okay. So what it says is that it does not have the sufficient data to provide such a figure that the chart was intended to show that 70% Indian women were abused by things such abuse justified. हम कुछ they were something else. तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट था कि वॉशिंगटन पोस्ट जैसी एक न्यूज़पेपर ने कहते हैं इस तरह की apology. They replied personally. That's biggest. They replied personally. Yeah. Next. उसी टाइम गोल्डन बॉन्ड से एक ऐड था that was about domestic violence on women. Okay. तो उसमें हमने कहते हैं काफी अफसोस किया था. मुंबई टीम ने काम किया था तो वो ऐड हट गया था. नेक्स्ट फिर जस्ट एक बार पीछे ले जाओ. पिछले से ये फर्स्ट प्रोटेस्ट मेजर प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में जब ऑल ओवर इंडिया सब आए थे 2007 में. ये जंतर मंतर है. नेक्स्ट. ये सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल जब आ रहा था पार्लियामेंट्री कमेटी में तो नीलाद्री हैज रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट्री कमेटी. आई हैव रिप्रेजेंटेड. तो देखिए ये इस गवर्नमेंट से पहले ना बीजेपी से पहले जब कोई भी लॉ आता था तो पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाता था, फिर वहां से पब्लिश होता था न्यूज़पेपर में, लोग हम लोग सजेशन देते थे, फिर हम लोग को बुलाया जाता था. हम लोग को बुलाया जाता था, फिर हम लोग प्रेजेंट करते थे, फिर उसकी रिपोर्ट बनती थी. बट अनफॉर्चुनेटली जब से जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, दिस गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट, ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया.
नेक्स्ट एक्चुअली ऑन द अदर साइड में बता आपको जो फार्मर्स का जो इशू जो हो रहा है ना, इट्स ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज देयर वाज नो स्टैंडिंग कमिटी, देयर वाज नो कंसल्टेशन, किसी का एविडेंस नहीं बुलाया गया, किसी का व्यूज नहीं लिया गया और कोई कमेटी की रिपोर्ट नहीं बनी। वो सब सारा होता है ना सारे फार्मर्स के इशू। We recorded our protest. ये नेशनल मेंस डे है। नेक्स्ट आप क्विकली रन करते जाओ स्लाइड्स को, एक साइड पीछे। इसका एक पीछे ये हमारा गोवा की मीट है एक्चुअली, जिसको भी कॉल इट फर्स्ट नेशनल मीट, बट एक्चुअली इसको गोकुल ने बुलाया था कि भाई लेट्स हैव ए गेट टुगेदर। तो शिमला ये गोवा उसने बोला कि गोवा में मिलते हैं, कितने 60 लोग होंगे हम लोग। तो वी वर ऑल कनेक्टेड वर्चुअली, तो फर्स्ट टाइम वी मेट ऑल दिस पीपल, तो हमारे लिए वो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो वहां पे डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट टाइम लेट्स होल्ड इट इन शिमला। शिमला में हमने डिसाइड किया कि we'll do it on 15th August, because 15th August is the Independence Day और husbands के लिए भी इंडिपेंडेंस नहीं आई है, so that's why we will not celebrate Independence Day. So that was the reason behind holding it on 15th August. Okay, maybe we should add one thing. At that time, one Kirtan Boycott was happening of the BJP, and lots of media people had come, and then they wanted to peek in and to see what was happening in this. And instantly we got a huge media coverage. I think around 200 Actually, शिमला का जो मीट था, मैं तो उसको आज की डेट में इट्स स्टिल अ लैंडमार्क, मतलब वो अभी तक मीट नहीं हुआ है, ओनली बिकॉज इट वाज अ वेरी बैडली मैनेज्ड मीट। ओके, उसमें बहुत से इश्यूज थे। दारू नहीं मिला, सुरेश जी को दारू नहीं मिली होगी पक्का। नहीं दारू सब कुछ थी, बट conflict. प्रॉपर वे में पहली बार हो रहा था। लॉजिस्टिक इश्यूज थे, सब कुछ थे, बजटिंग के इश्यूज थे, बट मीडिया ने सब कुछ कैंसिल कर दिया। They totally whitewashed everything and it became a memorable event. So फिर ये दिल्ली का कुछ सर्कुलर्स आए थे 498 रिलेटेड। नेक्स्ट ये पार्लियामेंट्री कमेटी में आपको बता रहा हूँ 498 एक लेता नीलाद्री में थे। Yes, actually what happened was before that we didn't know how to enter into the law making thing. So actually Satya started it and he taught us that how you can enter into this committee. We noticed that every newspaper publishers would have in which they are inviting people for their own views. So we started giving our views and we started adding one line stating that we would like to give our oral evidence. And by that we were called, I think, in 6 and 7 different committees. In fact, in this particular 498 committee in which Koshiari, who also happened to be, I think, the governor of chairman, he was the chairman of this committee, and he later became the governor of Maharashtra, most probably. So we personally met him, and we did some lobbying also. We tried our level best to change it, but at least our protest was noted. Yes, was it? Please get it. Okay, next. ठीक है, रिपोर्ट बनी, इसकी रिपोर्ट का समरी बता देता हूँ मैं आपको। Yeah, please. इस रिपोर्ट में कमेटी ने बोला कि दिस लॉ नीड्स अ चेंज। Okay. So many people said it should become bailable. So many said it should get repealed. Yeah. But in the end, they said that okay, we'll wait and watch and see if required, then we'll see in the future what changes can be done. They said they suggested to the government to make it compoundable. That was the best that has happened on 498. This was in 2011. So it's 13 years already. Next. Can you try to click it? This previous video, it works actually. Yeah, IRPM. This is the. I would still consider the peak of our movement was 2013. That IRPM thing. So, as a part of that protest. The message protest. When Yeah, they were in yeah, Parliament, yeah. people were sending. A group of our. 2 days. Just 1 day before. सरकार हालांकि अभी भी सॉफ्ट अप्रोच की बात कर रही है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कोई भी टफ स्टैंड लेने को फिलहाल राजी नहीं है। डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए ही, वर्ल्ड बातचीत के जरिए ही इस पूरे मामले को सुलझाना चाहती है और विदेश मंत्री का दौरा भी है। तो ऐसे में फिलहाल सरकार की अप्रोच इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के जरिए ही सुलझाने की रहने वाली है, लेकिन सेना नजर आ रही है। इस बीच एक और खबर आ रही है, आपको बता दें कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, आपको बता दें बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री आवास पर। रूरल प्रोजेक्ट में बदलाव पर कैबिनेट में भी मतभेद नजर आ रहे हैं। बाल कल्याण मंत्री कृष्ण चौबे इस बदलाव का विरोध करेंगे। उनका कहना है कि इससे खिलाफ को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही
कुछ सामाजिक संगठन भी इसके विरोध में उतर आए। सांसद संदीप सोमेकर इस वक्त हमारे साथ में, क्या कुछ बदलाव की सिफारिश की गई है, क्या कुछ मतभेद के बिंदु में संदीप हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि जब राज्यसभा में बिल रखा गया था तो उसके समय राज्यसभा ने प्रस्ताव पास किया था कि जो महिला है जो तलाक हुई थी तो उसके बाद में उसको कभी भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाए जो निवासी पैतृक संपत्ति उसमें। तो इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में गई रिपोर्ट मिल गया और वहाँ पर जो मंजूर कर लिया तो सरकार क्योंकि संशोधित बिल को लाना चाहती है सदन में दोबारा, तो इसलिए उसको करने की मंजूरी दी जा रही है। तो बीच ये खबर आई है कि जो कानून मंत्री है उसके पक्ष में है कि महिला को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाए, लेकिन जो महिला बाल विकास मंत्री है तो विरोध कर रही है। उनका कहना है कि बिल पास हुआ तो कास्ट को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इसकी मुद्दे को रोकने के लिए उनका विरोध कर रही है। कैबिनेट में इस पर चर्चा हो रही है। जी, कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी, लेकिन इस बीच कैबिनेट में जैसे गुजर चल रही थी, बाहर कुछ संगठन आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बाबत। कुछ करीब 15 से 20 लोग यहाँ आए थे और उनका संगठन है एवं इंग्लिश भर में का कहना था कि इस तरह का बिल पास होता है तो लोग उसका महसूस करेंगे और उसके परिवार की संस्था है इसको नुकसान होगा। तो 15 दिन से प्रदर्शन किया, उसके बाद कुछ देर बाद इनको पुलिस उठा कर ली गई और उनको यहाँ पर सड़क पुलिस वालों में रहना जहाँ से उनको रिहा कर दिया जाएगा। इनका विरोध रहता है, कहना है कि कानून को आगे न बढ़ाया जाए, सरकार इस पर तमाम लोगों को बुलाया जाए तो जिससे भारतीय जो राज्य सरकार को नुकसान पहुंचे। हालांकि ये विरोध लंबे समय पर होता रहा, जो राज्यसभा में से पास कर दिया गया। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। करने की भी मतभेद दोपहर ये बेसिकली पीएम हाउस जो था 7 रेस कोर्स रोड में, वहां पे वी प्लान्ड ओवरनाइट। सो अमित वाज देयर। अमित नया मूवमेंट में आया था इस टाइम से 1 साल हुए थे। इंडक्शन प्रोग्राम था, इंडक्शन हो रहा था ओवरनाइट कैसे है। Actually, I was new to the movement that time, and तो मैं काफी एक्टिव हो गया था उस टाइम। उससे पहले हम लोगों ने एक धरना भी किया था दिल्ली में, अगस्त में धरना हुआ था जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे। एंड IRBF के लिए हम लोग काफी लॉबिंग कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारे कैंपेन्स किए थे ऑल ओवर इंडिया, सबने मतलब आउटसाइड दिल्ली भी हम लोगों ने जो जितने भी MPs थे उनके फोन नंबर स्प्रेड कर दिए थे। सब MPs के घरों में हम लोग दिल्ली में जा रहे थे, बट अक्रॉस इंडिया लोग सारे MPs को मैसेजेस कर रहे थे। तो आई रिमेम्बर पार्लियामेंट में हमारे मैसेजेस पढ़ के MPs ने बोला था कि ये हमें मैसेजेस आ रहे हैं एंड पीपल आर अगेंस्ट दिस। सो वहां पर एक हमारे ग्रुप में से हरीश दीवान होते थे, उन्होंने हमें बताया कि कल मनमोहन सिंह जी के घर पे एक मीटिंग बैठने वाली है टू डिस्कस दिस बिल, तो हमें कुछ करना चाहिए उसके बारे में। एक दिन पहले हमें पता लगा था, तो एक दिन पहले मेरी वासठ की और हम सबकी बात हुई कि क्या करना चाहिए। हमने बोला कि प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी होगा देखेंगे। तो आई स्टिल रिमेम्बर वासी भाई ने कहा था कि अभी शाम को हम डिस्कस कर रहे हैं दोपहर को, और कल सुबह हमें प्रोटेस्ट करना है। सो हम लोगों ने उसी टाइम पे 8-10 लोगों की कॉलिंग टीम्स बनाई। 10 लोगों ने सबको कॉल किया, सबको हमने 20-20, 25-25 नंबर देके 10 लोगों ने सबको अगले 3-4 घंटों में कॉल्स किया कि कौन आ सकता है टू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। वी कुड नॉट पुट दिस ऑन द सोशल मीडिया एनीवेयर कि हम ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं पीएम के घर के बाहर। तो हम लोगों ने इंटरनली डिस्कस किया कि 10 बजे हमने वहां पर मिलना है, और हम लोग अबाउट 70 लोग वहां पर मिल गए थे। अबाउट 60 to 70 पीपल सुबह 10 बजे वहां पहुंच गए थे। उनको ये नहीं पता था कि हमारा प्लान क्या है एग्जैक्टली। हमने सबको बोला था पहुंचना है। वासी भाई ने मुझे कहा था कि देख लो अरेस्ट भी हो सकता है, करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, बता देना सबको अरेस्ट हो सकता है। तो हम सोच के गए थे कि अरेस्ट होगा तो हो जाएंगे हम लोग। और वहां पर हम लोगों ने देखा पूरा मीडिया वहां पे था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के घर में मीटिंग होती है तो पूरा मीडिया होता है। वी वेंट टू द मीडिया एंड द मीडिया सेड कि आप यहाँ पर आग भी लगा लोगे तो हम कवर नहीं करेंगे अनलेस हमें हमारे बॉसेस ऊपर से ऑर्डर नहीं करेंगे। तो हमने पहले मीडिया के साथ लॉबिंग करी वहां पर आधा घंटा कि हमारे इश्यूज क्या हैं लॉज में, क्या व्हाट इज रॉन्ग इन दिस लॉ एंड एवरीथिंग। उन्होंने अपने बॉसेस को कॉल किया, फिर उनके बॉसेस, अभी जो बहुत सारे न्यूज प्रेजेंटर हैं उस टाइम पे जर्नलिस्ट होते थे, तो उनके बॉसेस ने उनको गो अहेड दिया। फिर इन्होंने हमें बोला कि अब आप आ जाओ। तो जैसे ही हम वहां पर गए पूरा मीडिया वाज कवरिंग अस एंड वी वर ऑन द लाइक पूरा दिन हम लोगों ने कम से कम 17-18 चैनल्स पे हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई थी उस दिन। एंड वी वर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम एवरीवेयर कि ऐसा कभी नहीं हुआ। वी वर ऑन एवरी चैनल एंड एवरी चैनल वाज डिस्कसिंग ओनली दिस। उस दिन पूरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था यही था। और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक ग्रुप बनाया और ये लॉ हम लोग रोक पाए।
this moment of IRBM, that phase of say this campaign ran for around 6 months. This protest. It was also around the national meet time, the same IRBM Yeah. in Nagpur. It ran for around 6 months. This protest, entire protest, because a lot of lobbying was being done in Delhi, in Bangalore, in Mumbai. The protest was happening there in Pune. Okay. You guys know what is IRBM? Inheritance property rights. Yeah. At the time of divorce, Inheritance property rights. 50% of the property has to be given to the wife. Yes. So that is Even ancestral property. essentially the Mandatory. not on by Not on wife. husband's. Yeah, it's a huge achievement. Yes. Yes. One of the Wife best, petition not for a on by divorce. wife. Divorce has to be granted. 50% of the husband's property to be given to. Inheritance. Even parents. Whatever property belongs to the husband to be given. That is the IRBM. ये मनमोहन गवर्नमेंट का लास्ट बिल था जो बिल्कुल तैयार रखा Right. था That time BJP was in opposition, तो हम लोग ने जेटली जी के साथ भी काफी लॉबिंग की थी. ये लास्ट बिल है ये सुषमा स्वराज also. And Harish Dewan का काफी अच्छा रोल था उसमें. Only काफी MP who he was an publicly influential person. So end of the day ना ये stop हो गया था. And this was a big relief. So moral of the story was कि existing law change करना is near impossible. But हाँ, they get diluted, but change होता है ना जो it's very difficult. But new laws पे we can work on and get some success. इसमें VHP ने भी काफी सपोर्ट करा था उनके RSS ने भी किया. हमने RSS के साथ भी लॉबिंग की थी. उसमें मैं गया था वहाँ पे उन्होंने भी बोला था कि तुम सुबह करो हम तुम्हारे साथ. हाँ मुझे पता बैक एंड पे RSS ने बहुत काम किया. Because there is some note वो हरीश जी ने निकाल के गया था कि some men group and RSS they are opposing this law. So for the time being we are not taking into consideration. ऐसा कुछ note है. So this everybody knows now. Let's skip it. But Vasibhai, for IRBM we did a protest outside Parliament also. I remember पूरा बस भर के अरेस्ट हुआ था. हाँ नहीं ये 7 रोज कोर्स में क्या हुआ था ना कि यहाँ पर आए चीज वायरल हो गई बस एक वैन आई हम सबको उठा के लेके चले. This was the first experience for us. We didn't know what will happen. तो हमें 2 घंटा रखा फिर छोड़ दिया. तो उसके बाद हमें पता था पार्लियामेंट के बाहर में जाएंगे तो वैन जाएगी ले जाएगी फिर छोड़ देंगे. एक बार नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट हुआ था सब आए थे तो उसमें भी सब गए थे. Okay, this Arnesh Kumar judgment, this came in 2014, everybody knows. So, in the movement, this is a milestone. This is another one good milestone. Next. This Rajesh Sharma judgment is not nullified. Next. No. So this Satyagraha for month. This is the all India protest that we conduct in Delhi. More than 1,000. Yeah. So we have done it 2 times. That was before pandemic. After pandemic, this is due from our side. So we'll see when is the right time to call for. Next. So attendance here is 1,000. So normally in our protest, the attendance goes to 200, 300, maximum 400. So Satyagraha we have managed to do it 1,000, 1,500. So next. So that's it as far as the history is concerned. After that, you all are part of that history now. So we don't need to. Yeah. So this is as far as history is concerned. Now the second part. See, we as a movement have been working on making a constitution of SIM. Because we have been काफी टाइम हो गया हमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. उसके ऊपर काम हुआ है काफी. अब वो खोल दीजिएगा प्रेजेंटेशन दूसरा. फिर उसमें काफी सेकंड ड्राफ्ट रेडी हुआ, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर जम्मू में रहा. तो लास्ट नेशनल मीट में some core people of this team have come up with a final draft. तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ. वो आप लोग देख लो, पढ़ लो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो क्योंकि हर चीज उसको पढ़ के पढ़ना मुश्किल है. ठीक है, बट आप लोग पढ़ के एक्सप्लेन करना मुश्किल